Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are fine. Okay, let us continue chapter number 2. Chapter number 3, and our topic is Rhodophyceae. Okay, chapter number 3 का नाम क्या है बेटा? Plant Kingdom. Okay, in previous lecture we discussed about Chlorophyceae and Phaeophyceae. Chlorophyceae is known as green algae. Phaeophyceae is known as brown algae. And today our topic is Rhodophyceae. It is red algae. Okay, Rhodophyceae का दूसरा नाम क्या है बेटा? Red algae. It is also known as red algae. Why? Because it appears red due to the presence of pigment, and name of the pigment is R-phycoerythrin, most important for all exam. समझ में आया? Why this algae appear red? Due to presence of dominant pigment. सबसे ज्यादा कौन सी पिगमेंट है? R-phycoerythrin. एरिथ्रिन का मतलब है रेड, उसके पास रेड कलर की पिगमेंट है बेटा, सो इट अपीयर्स रेड इन कलर. That's why it is known as red algae. Clear बेटा? Okay. Now habitat. कहाँ पे present है बेटा? Is it fresh water? No. It is marine. Marine का मतलब found in sea water and ocean water. That means found in salty water. Okay बेटा? Clear? The habitat is marine. Second, found in warmer area. मतलब जहाँ पे टेम्परेचर लोअर होता है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी. They are found in warmer area, जिसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा बेटा. Okay, they are present on the surface of the water where enough light is penetrate. समझ में आया? क्लियर? कहाँ पे प्रेजेंट होती है? भाई जहाँ पे सनलाइट इजीली अवेलेबल है, ऐसे वाटर की जो अपरमोस्ट सरफेस है ना वहाँ पे ये algae प्रेजेंट होती है. इम्पोर्टेंट. रेड algae प्रेजेंट एवरीवेयर. सरफेस में भी होती है, बॉटम में भी होती है. मोस्ट इम्पोर्टेंट, नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. बॉटम में भी होती है. वेल लिस्ट अमाउंट ऑफ लाइट पेनिट्रेट. समझ में आया? क्लियर? ओके, तो आ जाओ. द हैबिटेट कहाँ पे है? वेल इट इज प्रेजेंट इन वेल लाइटन एरिया. वेल लाइटन एरिया such as on the surface of the water and present at the great depth to ocean where little light penetrate. ओके, कि ओशन की जो डेप्थ में थोड़ी सी भी लाइट जाती है ना वहां पे प्रेजेंट होगी. लेकिन लाइट मिलनी चाहिए, थोड़ी तो थोड़ी, लेकिन लाइट तो मिलनी चाहिए. लाइट मिलेगी ना, then only they carry out photosynthesis, prepare their food and they can survive. Okay बेटा? क्लियर? क्लियर बेटा? समझ में आ गया बेटा? हैबिटेट क्लियर. इट इज मरीन, फाउंड इन सी वाटर एंड ओशन वाटर. सेकेंड, फाउंड इन वार्मर एरिया. Okay, present on the surface water and present in the deepest part where little amount of light penetrates. समझ में आया बेटा? Okay. थैलस कैसा है? Their body is multicellular. थैलस किसको बोलते हैं? The structure of fungi and algae are very primitive. Fungi and algae का जो structure होता है बेटा एकदम primitive होता है. Okay, एकदम simple होता है. That okay, that body structure it is known as thallus. उसको क्या बोलते हैं बेटा? Thallus. Simple structure. Okay, thread like होता है, fragment जैसा होता है बेटा. It is multicellular, मतलब number of cells. It is a multicellular algae. समझ में आया? Okay, चलो. Food is stored. Food किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ये नीट में आता है क्वेश्चन. तो food is stored in the form of Floridian starch. Most important. नीट के लिए, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च. अरे ये फ्लोरिडियन स्टार्च कैसा होता है? तो इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. समझ में आया कि भाई फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है? क्योंकि अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन मतलब इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर. ये ग्लाइकोजन भी ब्रांच स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन ओके एंड फ्लोरिडियन स्टार्च. तो ये सब का स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रांच. किससे बनते होंगे? नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से. ओके, thousands of glucose molecules
they arrange in branch and form a very complex structure, and that structure is Floridian starch. Clear beta? Okay, very simple and important. In red algae, food is stored in the form of किस Floridian starch. रेड algae की रेड कलर की क्यों है? पिगमेंट का नाम बोलो. आर फाइकोइरिथ्रिन. सरफेस वाटर में भी होती है, और जहाँ पे लिस्ट अमाउंट में एकदम थोड़ा सा सनलाइट जाता है डीपेस्ट पार्ट में ओशन के, वहां पे भी ये प्रेजेंट होती है. इंपॉर्टेंट. समझ में आया? ये नीट में आता है. ओके, क्लियर बेटा? ओके, चलो रिप्रोडक्शन कैसा है देखते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पता है कि भाई ऑल द algae shows vegetative reproduction by fragmentation. ओके, सपोज ये algae का थैलस है. ये algae का क्या है? थैलस है. ओके, सपोज इसका कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 1 2. ओके, 1 2 3 pieces are formed. From each pieces new alga are formed. 3 पीसेस बने. समझ में आया? टूट गया ये थैलस, सिंपल स्ट्रक्चर टूट गया, और उसमें से 3 पीसेस बने. Each pieces give rise new alga. Clear? Such type of vegetative reproduction is known as fragmentation. टुकड़े होना, हर एक टुकड़े में से न्यू alga फॉर्म हो जाएगा भाई. वेरी सिंपल है ना? ओके. नाउ सेकेंड, asexual reproduction. It is takes place by non-motile spore. किसके थ्रू होता है भाई? non-motile spore के थ्रू होता है. वेरी सिंपल, याद रखना है. Clear? Whereas the sexual reproduction takes place by non-motile gametes. Most important. Gametes कैसे हैं? non-motile. Clear? क्वेश्चन होगा मैम गैमेट्स non-motile है तो भी दोनों का फ्यूजन कैसे होगा? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन कैसे होगा भाई? कैसे होगा बोल? ये तो एल्गे है. एल्गे इट इज एक्वाटिक. ओके, क्लियर? वाटर के प्रेजेंस में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. वाटर हेल्प करेगा. समझ में आया? क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय non-motile gametes. Flagella is absent in gametes. Gametes के अंदर flagella नहीं है, याद रखना है. क्लियर? ओके बेटा, बहुत मस्त टॉपिक है. आ जाओ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ विच टाइप? oogamous. मोस्ट इंपोर्टेंट. oogamous का मतलब क्या है? हियर oocyte. oocyte का मतलब फीमेल गैमेट. दिस इज oocyte. उसका दूसरा नाम फीमेल गैमेट. And male gamete is very smaller. Suppose this is male gamete. Here, oocyte मतलब female gamete is bigger and static. Non-motile है, ये भी non-motile. It is male gamete is smaller and static. Static का मतलब क्या है? एक ही जगह पड़ा रहता है. Non-motile. तो भी दोनों का फ्यूजन होता है. कौन हेल्प करता है? वाटर. कौन हेल्प करता है बेटा? वाटर. समझ में आया? क्लियर? तो याद रखना है जिसके अंदर फीमेल गैमेट बड़ा होगा, मेल गैमेट छोटा होगा, तो दैट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज oogamous. मोस्ट इंपोर्टेंट. ओके बेटा, क्लियर? अब दोनों का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा? जाइगोट. हेलो बेटा, फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन होना मतलब फ्यूज होना. जाइगोट इज फॉर्म, और जाइगोट के बाद का जो डेवलपमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होता है. मतलब कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप एंड accompanied by a complex post fertilization event. वे फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होती है वो सारी कॉम्प्लेक्स होती है, नॉट सिंपल. समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, चलो अब लास्ट बट नॉट लिस्ट एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट. ओके, पीपीजीजी. पीपीजीजी, पीपी पोलीसाइफोनिया पोरफायरिया, जीजी ग्रेसिलेरिया जेलिडियम. वेरी सिंपल. ओके, कैसे याद रखना है? पीपीजीजी. ओके, पी फॉर पोलीसाइफोनिया, सेकेंड पी फॉर पोरफायरा, जी फॉर ग्रेसिलेरिया, एंड लास्ट जी फॉर जेलिडियम. दिस फोर आर रेड alga. ये चारों कौन है बेटा? रोडोफाइसी है.
इट इज रेड alga. क्लियर है ना बेटा? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्त लर्न करना है. अब हमारे टेक्स्ट बुक में जो टेबल है ना वो हम लर्न करेंगे. टेबल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर वो टेबल में से एमसीक्यू आता ही. चलो लर्न करते हैं. Hello student, let us discuss the comparison of division of algae and their main characteristic. First is chlorophyceae. Okay, common name is green algae. Okay, why it is green in color? Due to presence of pigment chlorophyll A and chlorophyll B. समझ में आया कि भाई chlorophyceae they are also known as green algae. रीजन क्या है? दे आर ग्रास ग्रीन इन कलर. क्यों ऐसा? कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है बेटा? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. दिस एल्गे स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. मोस्ट इंपोर्टेंट, कंपेरिजन के थ्रू जो याद रखोगे ना लॉन्ग टाइम याद रहेगा बेटा. ओके, हियर द सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गे इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. क्लियर बेटा? नेक्स्ट, flagella number and position of insertions. कि भाई how many flagella are present? तो आंसर आएगा 2 to 8. ओके, क्लियर? here 2 to 8 flagella is present. The size of flagella are equal and they are present in apical region, tip region. apical का मतलब क्या है बेटा? tip region. habitat, this algae is present in fresh water, brackish water and salt water. Okay, brackish water का मतलब क्या? सड़ा हुआ पानी, एकदम गंदा होता है ना वो. fresh water मतलब pond water, lake, river, and salt water मतलब it is present in sea water and ocean water. Okay बेटा, clear? Chlorophyceae, second name green algae. Which pigment? Chlorophyll A and B. Food is stored in form of starch and the cell wall is made up of cellulose. Clear बेटा? उसके पास flagella है. Yes. The gametes, spores, they are having flagella. Numbers कितने हैं? 2 to 8. The size of flagella are equal and they are present at tip region, apical region. Present in all type of water, fresh water as well as salt water. और यहाँ पे brackish water भी लिखा है, important सड़ा हुआ पानी. Second is Phaeophyceae. Second कौन है बेटा? Phaeophyceae. It is also known as brown algae. Which pigments are present? Chlorophyll A, chlorophyll C and fucoxanthin. याद रखना है. Chlorophyll A, chlorophyll C and fucoxanthin. Okay. Due to presence of fucoxanthin, it is brown in color. Important. Okay, food is stored in form of mannitol and laminarin. ये भी नीट का क्वेश्चन. Okay, Phaeophyceae, fucoxanthin. Okay, then stored food ml, mannitol, laminarin. Cell wall is made up of cellulose and algin. Okay, cell wall में क्या है? Only cellulose नहीं, algin भी present है. It is a gelatinous material. Algin is a gelatinous material. Okay बेटा? How many flagella are present? 2. Okay, the gametes having 2 flagella which is unequal in size. ऊपर gamete के पास 2 to 8 flagella है, यहाँ पे only 2 flagella. ओके, ऊपर इक्वल साइज, यहाँ पे अनइक्वल साइज. ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बेटा कंपैरिजन के फॉर्म में. क्लियर? इन ग्रीन एल्गे फ्लैजेला इज अपिकल. एपिकल का मतलब क्या है? टिप पे है, गैमेट के टिप पे है. whereas here it is present at the lateral side, दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, लेटरल साइड बोलते हैं. ओके, फ्लैजेला की जो लेंथ होगी अनइक्वल है, एक लंबी होगी, एक कैसी होगी? शॉर्ट होगी. Habitat, it is present in fresh water, rare in brackish water and salt water. समझ में आया? क्लियर? ओके, इम्पोर्टेंट.
Now last one is rhodophyceae. It is also known as red algae. समझ में आया बेटा? Which pigments are present? Chlorophyll A, chlorophyll D and phycoerythrin. याद रखनी है बेटा, most important. Due to presence of phycoerythrin, it is red in color. Okay, एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं इन alga which pigment is common. सारी एल्गे के अंदर कौन सी पिगमेंट कॉमन है? तो आंसर क्या आएगा बेटा? क्लोरोफिल ए। देखो सबके अंदर क्लोरोफिल ए है। समझ में आया? विच पिगमेंट इज अनकॉमन फाउंड इन क्लोरोफाइसी? अनकॉमन मतलब कॉमन कौन सी नहीं है? तो बी। फियोफाइसी में सी एन फ्यूकोजेंथिन एंड रोडोफाइसी में कौन आएगा? डी एन फाइकोइरिथ्रिन। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कंपैरिजन से याद रखो, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा बेटा। फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। भाई ये फ्लोरिडियन स्टार्च है क्या? ये कौन सी चीज है भाई? इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। ओके, तो इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फ्लोरिडियन स्टार्च वो ग्लूकोज का हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है बेटा। समझ में आया बेटा? ओके, नो सेल वॉल याद रखना है। द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देखो एल्गी के सेल वॉल में सबके अंदर सेल्यूलोज कॉमन है। देन पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, ये नीट में आया था। कौन सी एल्गी की सेल वॉल के अंदर पॉलीसल्फेट एस्टर है? तो आंसर क्या आएगा? रेड एल्गी। क्लियर? ओके, सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज कॉम्प्लेक्स देन ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। ओके, दोनों से किसकी सेल वॉल कॉम्प्लेक्स है भाई? रोडोफाइसी की। किसकी बनी है? सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। क्लियर? ओके, गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, स्टेटिक है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों में से किसी के पास फ्लैजिला नहीं है। क्लियर? ओके, हाबिटेट कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? फ्रेश वाटर। ओनली सम रेड algae प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, अदरवाइज तो मरीने। मोस्ट, ओके, ये सम मोस्ट में याद रखना है। मोस्ट रेड algae they are found in salt water. सॉल्ट वाटर मतलब ओशन, सी वाटर में, ओशन वाटर के अंदर प्रेजेंट है। सम प्रेजेंट इन ब्रैकिश वाटर, सड़ा हुआ पानी के अंदर भी प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट। समझ में आया बेटा? तो हमने ये क्या लर्न किया आज? ये कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। ओके, इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या याद रखना है? ये 1 2 3 4 5। ओके, उसमें तो ये 4 कॉलम बहुत याद रखने हैं। 1 2 3 4। ओके, पिगमेंट क्लोरोफाइसी, बोलो कौन सी पिगमेंट? क्लोरोफिल ए बी। फियोफाइसी क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन। रोडोफाइसी क्लोरोफिल ए डी फाइकोइरिथ्रिन। ओके, स्टोर्ड फूड स्टार्च। स्टार्च नीचे एमएल का मतलब मैनिटोल लेमिनारे, लास्ट में फ्लोरिडियन स्टार्च, लेटेस्ट स्टार्च। ओके बेटा, सेल वॉल सेल्यूलोज, देन ब्राउन एल्गी के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज एंड एल्जीन। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट रेड एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। और ये गैमेट्स भी याद रखने हैं। ओके, मैक्सिमम फ्लैजिला कौन से गैमेट के अंदर होगी? तो आंसर इज क्लोरोफाइसी के गैमेट्स में होगी, और वो भी इक्वल साइज की। ओके, दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द गैमेट, whereas फियोफाइसी में 2 flagella are present which are unequal in size. कहाँ पे लोकेटेड है? लेटरल साइड, दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, whereas flagella is absent in the gamete of red algae. So this is the most important theory बेटा। ओके, मस्त लर्न करना। ओके बेटा, लिख के लर्न करना।